ہی کے ہم معنی تھے، جو وہی مفہوم ظاہر کرتے تھے جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں، اس طرح کے القاب بدعتیوں کے مقابلے میں اختیار کیے گئے۔ مثلا سلف صالحین کہا گیا، سلف کا لفظ استعمال کیا گیا، یا اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا، یا اہل الاثر یا اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کیا گیا۔ یہ القاب تھے اس لیے تاکہ حق اور باطل کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں تمیز کیا جائے، اور یہ وہ پاکیزہ الفاظ تھے جو تمام دوسرے گمراہ اور باطل فرقوں سے تمیز کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے، اور جو تمام دوسرے فرقے نسبتوں کے بنے تھے ان سے کئی وجوہات کی بنا پر یہ لوگ معزز، محترم اور مکرم تھے اور بہتر تھے۔ چنانچہ نمبر 1 وہ وجوہات جن کی وجہ سے اہل الحدیث یا اہل السنہ یا اہل الاثر یا اہل الجماعہ یا یہ تمام القاب جو استعمال کیے گئے ہیں اہل حق کے لیے، جو اللہ نے اور خود سلف نے اپنے لیے چنا ہے، یہ کئی وجوہات کی بنا پر دوسرے تمام نسبتوں سے ممتاز ہیں۔ ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں مکمل پورا اسلام سمویا ہوا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کہا میں اہل الحدیث ہوں تو قرآن بھی ہے اور اسی کے اندر بولو سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور دونوں کو شامل ہے یہ، تو پورا کا پورا اسلام قرآن کا نام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اگر کسی نے کہا میں حنفی ہوں تو ظاہر ہے پورا اسلام تو نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ اگر حنفیت پورا اسلام ہے تو پھر شافعیت کو اسلام سے خارج ماننا پڑے گا۔ بولو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ حنبلیت کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے ایسے القاب سلف نے نہیں اختیار کیے اپنے لیے، ایسا لقب اختیار کیا جس کے اندر مکمل کا مکمل اسلام سمایا ہوا ہے، بلکہ مکمل اسلام کی ترجمانی ہوتی تھی اور مکمل اسلام کتاب و سنت کا نام۔ دوسری وجہ جو اس لقب کو ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، گمراہ فرقوں سے، وہ یہ وجہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ القاب ثابت ہیں، اور کچھ سلف نے صحابہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں، جیسے جماعت کا لقب ہے، طائفہ منصورہ کا لقب ہے، فرقہ ناجیہ کا لقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ قیامت تک ایک جماعت حق کو، میری امت کی ایک جماعت حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، طائفہ منصورہ ہوگی، غالب رہے گی، اس کو کوئی شخص مٹا نہیں سکتا، اور کسی کی برائی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی، وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گی، قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ تو وہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، اس کو اللہ کے نبی نے طائفہ منصورہ قرار دیا۔ اور کچھ القاب ایسے ہیں جو یہ لقب ہے سلف نے اختیار کیا ہے، جو گمراہ فرقوں اور منمانی کرنے والوں کے مقابلے میں بطور پہچان کے استعمال کیے گئے تاکہ ان کا رد کیا جا سکے، اہل حق اور اہل باطل میں فرق اور تمیز کیا جا سکے، اور امت مسلمہ کے اچھے لوگوں کو ان کی بدعتیوں، مشرکوں اور سے دور کیا جا سکے۔ چنانچہ مختلف دور میں مختلف القاب اختیار کیے گئے۔ جب بدعتیوں کا دور ہوا تو سنہ کا لفظ بڑھایا گیا کہ بھائی ہم اہل السنہ، مسلمان ہیں وہ بدعتی مسلمان تھے، تو ان کے مقابلے میں کہا کہ ہم اہل سنت، ہم بدعتی نہیں، اہل سنت ہم بدعتی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا بدعتی ہے وہ سب سے بڑا اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ یہ دور بڑا عجیب و غریب آیا ہے، جو سب سے بڑا چور ہے وہی سب سے بڑا امن کا نام لے رہا ہے، جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور زمانے سے امریکہ پھیلا رہا ہے، جو دنیا میں یہ واجپئی اور بی جے پی جو دہشت گردیوں کے یہ تنظیم ہی پوری آر ایس ایس کی اور یہ بجرنگ دل کی، وشو ہندو پریشد کی، مکمل یہ ہے ہی ہے دہشت گرد، ٹیررسٹ ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ سب سے بڑے امن کے داعی بنے بیٹھے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ اور مسلمان جو اسلام کا پیروکار ہے، جو امن و شانتی کے لیے دنیا میں ہے، جو لوگوں کو امن کا پیغام دے، جس کو یہ قتل کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یہ یہودی جو فلسطین میں مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے امن کے پیغامبر بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان ٹیررسٹ بنا ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ معاملہ چونکہ دور ہی ایسا ہے الٹا، اسی لیے جو جتنے اہل بدعت ہیں، جو جتنے ہی بدعت و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اتنے ہی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے، اور جو اہل سنت ہیں بیچارے اہل الحدیث ہیں، ان کو دھڑدھڑایا ہوا ہے کہ وہابی ہیں، زیادہ غیر مقلدہ مذہب ہے، ان سے دور رہو۔ جی یہ زمانے عجیب و غریب پڑتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ تو یہ لے لے، ہم یہ لے لیں، اور جو سچے ہیں انہیں کے اوپر ساری تہمتیں لگا دو، باقی اپنے مزے اڑاؤ۔ یہی کیا جا رہا ہے اسلام میں بھی، اور
और यही किया जा रहा है, सियासी लोग भी यही कर रहे हैं, सियासत की चालें चल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बहरहाल मेरे अजीजों, जब अहले बिदात का दौर हुआ तो खालिस मुसलमानों ने अपने आप को अहले सुन्नत कहना शुरू किया। क्यों? मुसलमान वो भी है, मुसलमान वो भी कहते हैं, मुसलमान है तू भी मुसलमान, तो फर्क कैसे होता? वो बिदअती है तो फर्क कैसे होता? तो इसलिए कहा गया हम अहलुस सुन्ना हैं। फिर जब राय और क़यास का जोर हुआ, हदीस और कुरान को साइड में रखकर वो फलाने क़यास पे राय पर राव का मज़हब तैयार हुआ, तो उस वक्त मुसलमानों ने अहलुल हदीस का लक़ब अख्तियार किया, मुहद्दिसीन ने अहलुल हदीस का लक़ब इख्तियार किया। बिदअतियों के मुकाबले में अहलुस सुन्ना का और अहले राय और क़यास के मुकाबले में अहलुल हदीस का लक़ब, अहलुल असर का, असहाबुल हदीस का लक़ब इख्तियार किया गया। और जब नाखलफ लोग पैदा हो गए तो और लोगों में बिदअतें और मनमानियां बढ़ने लगी, तो फिर सलफियत की तरफ निस्बत की जाने लगी कि हम सलफी हैं, हम खलफी नहीं हैं, गंदे बुरे लोग नहीं हैं। इसलिए ये सलफियत या अहलुल हदीस या अहलुल असहाबुल हदीस या अहलुल असर या अहलुस सुन्ना या ताइफ़े मंसूरा या जमा, ये तमाम सब अहलुल इस्लाम जो खालिस हैं, उनका ये लक़ब है, उनका ये नाम है। यहाँ ये बात मैं आपको और बताता चलूं, ये लक़ब है, बस नाम ही नाम है, ये वक्ती हैं, ये आरज़ी हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये उस वक्त तक है जब तक इस रूए जमीन पर बिदअती मौजूद है, जब तक तक़सीम करने वाले, गलत निस्बतें करने वाले मौजूद हैं, शरपसंद मौजूद हैं, उस वक्त तक तमीज करने के लिए हैं। जिस दिन दुनिया से ये बिदअतें खत्म हो जाएंगी, ये शरपसंदियां, ये राय क़यास खत्म हो जाएंगे और एक ही मनहज, एक ही किताब और सुन्नत पर दुनिया मुत्तफिक हो जाएगी, तो सब के सब मुसलमान कहलाए जाएंगे। तो फिर अहलुल हदीस और अहलुल असर सबका सब ये टाइटल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये बात समझिए, हाँ ये बात, ये हमारा मनहज यही है। लेकिन जब तक ये बिदअती हैं इस्लाम के नाम पर, तब तक हम फर्क करेंगे नहीं, हम बिदअती नहीं है, हम अहलुस सुन्ना, हम राय क़यास वाले नहीं हैं, हम मुखल्लिद नहीं हैं, हम अहलुल हदीस हैं। लेकिन अगर वो सब खत्म, हम आपस में अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपस में ये नहीं कहते कि अता रहमान साहब आप अहले हदीस हम भी हैं, नहीं, हम आपस में कहते आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान। अहले हदीस आपस में एक दूसरे को क्या समझते हैं? मुसलमान। लेकिन राय और क़यास के मानने वालों के मुकाबले में कहते हैं अहलुल हदीस, और हमें फख्र से स्टेजों में तुम कहो हम अहलुल हदीस हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि ये नाम भी हमारा गलत सलफ लोगों के अंदर बदनाम करने के लिए लेते हैं, और जब हम इनका नाम लेते हैं तो उनको चिढ़ हो जाती है, ये हमारा नाम लेते हैं। हमें तो नहीं चिढ़ होती, आप हमें कहो ये अहलुल हदीस है, हमारा सीना फख्र से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस है, इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह। मुसलमान हैं तो हमें क्या हो, लेकिन अगर हम कहें ये हनफी है, ये शाफी, ये कादरी हैं, हमको ये क्यों कहते हैं? तुम क्या कहें, आप भी आप हैं कि नहीं, चिढ़ते क्यों भाई? इसका मतलब ये है कि गलत नाम है, गलत निस्बतें हैं, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, अपनी निस्बत इस तरह से करो। बिदअतियों के मुकाबले में अहलुस सुन्ना, अहले राय और क़यास के मुकाबले में अहलुल हदीस अपने आप को कहो, अहलुल हदीस बनो, यही है। और जिस दिन ये तमाम सब फितरे खत्म, उस दिन हमारा सब एक ही नाम है, क्या? मुसलमान। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ये बात याद रखना मेरे दोस्तों। फिर हम मोमिनीन बनेंगे, मुत्तकीन हमारा नाम होगा, मुहसिनीन होगा। अल्लाह ताला ने जो कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस में हमको कहा है, हम यही होगा। और इसी तरह से मैं ये कर रहा था कि ये अल्काब जो है ना अहलुल हदीस, अहलुल असर के, ये क्यों मुमताज हैं? इसकी वजह एक ये भी है कि इनमें किसी उम्मती के लिए कोई तासुब नहीं झलक रहा। मसलन आपने कह दिया हनफी, तो शाफी मुंह फेर के उधर बैठ गया, क्या हनफी हमारे इमाम को नहीं मानता है नहीं। आपने कह दिया कि मैं कादरी हूं, तो नक्शबंदी उधर चला जाएगा। आपने कह दिया मैं चिश्ती हूं, तो फिर चिश्ती अपनी महफिल में तुम कादरी को नहीं बुलाएगा, क्यों? कि चिश्तियों के यहाँ वो गाने बजाने चलते हैं, रक्स और सुरूद होता है, कादरियों के नहीं चलता। बोलेगा यार तुम कादरी हो, तुम्हारे यहाँ तो ये चीज नहीं, हमारे यहाँ है। ताज्जुब नहीं लगता है। लेकिन कोई कितना भी मुजाहरा कर ले, नहीं कुछ कह दे कि वो देवबंदी, वो कहते हम बरेलवी, दोनों मिलेंगे, ताज्जुब आ गया कि नहीं आया? वो अलग हो जाएगा, इसको सलाम करिए, इससे सलाम करना साथ मत बहा, इनके यहाँ शादी ब्याह खराब, वो भी देखती है कि नहीं? ताज्जुब पैदा होगा। लेकिन अहलुल हदीस ये एक ऐसा नाम है कि किसी भी मुसलमान के दरमियान ये तासुब पैदा नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि अहलुल हदीस ये नाम वो है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम सारे तासुबात को मिटाकर अगर हमें तासुब करना है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने, उनकी इत्तबा करें, उसे उन्हें बस। जबकि दूसरे अल्फाज आप देख रहे हैं जैसे उम्मतियों की तरह मंसूब है, उसमें तासुब का ज़ाहिर है। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिरक़े नाजिया सिर्फ अहले हदीस और अहले सुन्नत में बस
वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। यही अहले हदीस और सुन्नत लोगों में सबसे ज्यादा इल्म और मारिफत रखने वाले हैं। नबी के अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी सीरत तैयबा, आपके आमाल, आपकी एक एक चीजें अहले हदीसों को मालूम होती हैं और वो उम्मत के सामने पेश करते हैं। और किसी भी इनके अलावा इतनी बातें किसी को भी मालूम नहीं होती हैं। और यही वो लोग हैं कि उन उसूल पर अमल करते हैं, अकीदे रखते हैं जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं या जो किताबुल्लाह के अंदर मौजूद हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह से यह अलकाब इसलिए भी सबसे ज्यादा अच्छे हैं दूसरे बातिल फिरकों के मुकाबले में कि जो किसी बिदती या किसी मासियत या किसी असबियत, मसलन आदमी जो है ना, जैसे कि जब यानी किसी जमात या किसी फिरके की तरफ इसकी निस्बत, मसलन अगर किसी से क्या कह दिया जाए कि भाई जब ये कह दिया जाए कि अहले हदीस है या अहले सुन्नत है, तो फटाक से दिमाग में क्या आता है कि ये बिदती नहीं। ये कौन? ये बिदती नहीं, सीधी सी बात। अहले हदीस है, ये बिदती नहीं है, ये मुशरिक नहीं है, ये शिर्क नहीं करते, है ना, या राय पर अमल नहीं करते, या ये अल्लाह और उसके रसूल ही की बातों को मानते हैं। फटाक से दिमाग में यही बात आती है और एक अच्छा तस्वुर आता है। लेकिन जब निस्बतों की बात आती है तो उसमें क्या होता है, भाई ये शाफी, मालिकी नहीं, हम्बली नहीं, ये अपने अपने इमामों की बातों को मानते हैं। तो मैं ये चंद, इसके अलावा बहुत सारे वजूहात, लेकिन मैंने वक्त की किल्लत की बिना पर ये चंद वजूहात आपकी खिदमत में रखे। अब आगे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ये बातें कही कि भाई अहले हदीस बनो, अहलुल हदीस हैं, यही मनहज है सहाबा का सबका, आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ये कोई भी कह सकता है कि क्या सहाबे कराम अहलुल हदीस थे? हैं? क्या सहाबे कराम अहलुल हदीस थे या इस तरह के? तो हम ये दावा करते हैं, जी हाँ, वो अहलुल हदीस थे। वो खुद को कहते थे और खुद को कहलवाते भी थे, और उनके शागिर्दों ने, यानी जो ताबईन हैं, उन्होंने भी अपने उस्तादों को, सहाबा को अहलुल हदीस कहा। इसकी दलील मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। और सुनो, मैंने शुरू में बताया है कि जब से अहले इस्लाम मौजूद हैं, जब से अहलुल हदीस, अहलुस सुन्नह के अलकाब भी मौजूद हैं। सहाबा, ताबईन, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के आमिल थे कि नहीं थे? सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के आमिल थे कि नहीं थे? क्या आपको नहीं मालूम कि सहाय सित्ता और दूसरी हदीस की किताबों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसें मौजूद हैं, इन सब के रावी, इन सब हदीसों की रिवायत करने वाले कौन हैं? बयान करने वाले कौन हैं? इन तमाम हदीसों के बयान करने वाले कौन हैं? तो जब हदीसों की रिवायत करने वाले, हदीसों को फैलाने वाले, सारे जहान में इन हदीसों को पहुंचाने वाले सहाबा हैं, तो क्या वो अहलुल हदीस हुए कि नहीं हुए? बोलो। हुए। हदीसों को बयान जो करे, हदीसों के अमल जो करे, हदीसों को रिवायत जो करे, हदीसों को दुनिया तक पहुंचाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसे अहलुल हदीस कहा जाएगा। ये हदीस वाले हैं, ये अहले हदीस। और अहले हदीस का माना क्या है? अहले हदीस का तो यही माना, हदीसों वाले, हदीसों को पढ़ने वाले, आगे पहुंचाने वाले, हदीसों पर अमल करने वाले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, दीन दुनिया के बेशुमार मसाइल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं उनके ऊपर अमल करने वाले, यही से तो पूरा दीन इबारत है कि नहीं? हदीसों से। तो बस इन हदीसों से वास्ता और राबता रखने वाले, इस्लाम को इस हदीस के जरिए से पहुंचाने वाले, अमल में लाने वाले सहाबे कराम, तो ये अहले हदीस हुए। कोई कह सकता है कि वो थे तो अहले हदीस, लेकिन क्या ये आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने आप को अहले हदीस कहा हो? कोई कह सकता है, और कहने वाले कहते भी हैं अपनी अपनी मजलिसों में कि क्या वो अपने आप को अहले हदीस भी कहते थे? तो मैं कहूंगा हाँ, सुनो, होश के नाखून लो और ये बात गौर से सुनो कि वो सहाबे कराम अपने आप को अहले हदीस भी कहते थे, कहलाते थे, जिंदा थे तब भी और मरने के बाद जब भी। उनके शागिर्द उनको अहले हदीस कहते थे। और सुनो, मैं सहाबे कराम की बात कर रहा हूं, सहाबा की, आइम्मे अरबा की विलादत से पहले। आइम्मे अरबा तो बाद में पैदा हुई हैं, मैं सहाबा कराम के जमाने की बात कर रहा हूं। और ये जो दीगर फिरके और मज़ाहिब पैदा हुए हैं, इनसे भी पहले उस सुनहरी और बाबरकत दौर में जिसमें कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन अहले हदीस वो अपने आप को कहते थे। एक ये जमात अहले हदीसों की मौजूद थी और वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात थी, और वो लक़ब अहले हदीस का मुतारफ था। लोग जानते थे कि अहलुल हदीस किसको कहा जाता है। इमाम ज़हबी हवाला नंबर 1 में दे रहा हूं कि सहाबा कराम को अहलुल हदीस कहा जाता था। और आज जो लोग ये कहते हैं कि अहलुल हदीस से कुफ्र की बू आती है, जरा वो भी होश के नाखून लें। मैं हवाले पे आ रहा हूं। और इमाम ज़हबी, अल्लाह अकबर, कौन है मालूम है? इमाम ज़हबी कहते हैं कि अगर मैं मनारे पे खड़ा हो जाऊं, मेरे सामने दुनिया के लोग खड़े हो तो मैं बता दूंगा फला
फला फला फला किस सन में पैदा हुआ है और किस सन में मरा है, उसकी कितनी मरवियात है। ये वो शख्स है इमाम ज़हबी। इमाम ज़हबी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 के अंदर बयान फरमाते हैं। और खतीब अल्लामा खतीब बगदादी